on organic reaction mechanism, which are very important part of obviously the upcoming exam, CSR NET. So previously I discussed, I think, up to 6 number. 5, then 6, okay. Up to 6 number. Now I have to start with, I think I have to 7 number I also done, I think. Okay, I will start with 7. Okay, the major product formed in the following reaction is, okay, so always remember NH2 that is hydrogen behave as a nucleophile, that means nucleus loving group. Where the electron density less or electron deficient, on that side हाइड्रोजन रिएक्ट ऑन इट. ओके, सो हाइड्रोजन कहाँ पर रिएक्ट करता है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है. ओके, सो दिस नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर दैट शुड बी रिएक्ट ऑन दैट साइड. ओके, so what is the mechanism, what are the steps? So now we have to follow. Okay, oh sorry, I mistakenly said that. यहाँ पर और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कार्बोनिल है. ठीक है, अगर आपका कार्बोनिल ना होता तो ऐसा होता. कार्बोनिल है तो कार्बोनिल फर्स्ट रिएक्ट करेगा. ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल का जो कार्बन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज much electronegative and having double bonded. So obviously due to this, oxygen push the electron cloud towards itself. So that's why carbon is much electrophilic in nature. Okay, but not only that, there must be some steps that should be there which can facilitate the reaction. How? The steps are basically, first one, NH2 react on carbonyl because of due to electrophilicity of कार्बन. कार्बन जो कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसमें कोई पोल नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक ही एटम होता है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है. सो दोनों में कोई भी पोलैरिटी गेन नहीं होता है, कोई भी ज़्यादा या कोई भी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद के पास नहीं रखता है. Okay, but when we have to consider carbon double bond O, so oxygen is much electronegative than carbon. So that's why oxygen always having the tendency to draw back the electron cloud towards itself. ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड खुद के पास खींच लेता है. सो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो ऑक्सीजन के पास चला जाता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाता है और कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है या पॉजिटिव कैरेक्टर हो जाता है. इसलिए जो नाइट्रोजन का लोन पे है वो कार्बोनिल का जो कार्बन होता है वहाँ पर अटैक करता है. ओके, क्लियर? नेक्स्ट वन, this is produced when any NH2 or NH3 that should be react on carbonyl, there must be, always remember, water release, and by water releasing there must be this type of carbon double bond N that should be produced. And after that, ET3N, that is triethylamine, behave as a base. Why? Because nitrogen having lone pair and this lone pair can abstract proton. जो आपका ET3N होता है उसका जो नाइट्रोजन होता है उसमें तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर है, उसके बाद 3ET क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है. तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर देता है. ओके, लोन पेयर एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन. सो दैट्स वाई दिस हाइड्रोजन दैट शुड बी रिलीज एंड देयर मस्ट बी दिस नेगेटिव चार्ज कैन बी डेवलप्ड. उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप, जो लोन पेयर होता है वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद वो हाइड्रोजन छोड़ देता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर देता है बाय वर्कअप. वर्कअप मतलब क्या होता है? आपका लास्ट जो हाइड्रोजन, वर्कअप मतलब एक प्रोसेस होता है, मतलब आप जो हर चीज़ करते हो तो वो तो एक्सपेरिमेंटल करते हो, एक्चुअली तो वो थियोरेटिकल नहीं, वो एक्सपेरिमेंटली होता है, राइट?
always done in experiment. Chemistry always done in experiment, and that should be explained by theoretical knowledge. Okay, so when you do all the reaction by step mechanism, there must be a certain steps are there where you have to do some workup. That means you have to do something in maybe dissolve in water, maybe give some add water, maybe add some protonic solvent, whatever you can do, but by workup you have to neutralize the carbon ion, and by this way proton abstraction is the easiest method, because if you give some nucleophile electrophile, so there must be another derivative type product produced, but this derivative type product is not required, right? So that's why you have to give any source which can able to give H plus in the medium, and this carbon ion can abstract this proton. So this is the things, that's why it is called as workup. Okay, so the product is that. So option, which one is the correct answer? Option C is the correct answer. Okay, next one, the major product. The major product of the following reaction is, जो major product है वो क्या है? तो ये देखो, ये जो है COCl, इसको बोला जाता है ऑक्सीटाइल क्लोराइड, ठीक है, और DMSO मतलब क्या होता है? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ओके, तो पहले ऑक्सीटाइल क्लोराइड के साथ DMSO रिएक्ट करेगा, कैसे? ऐसे देखो, दिस ऑक्सीजन नेगेटिव, मतलब इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, वहाँ का जो ऑक्सीजन नेगेटिव होगा वो रिएक्ट करेगा कहाँ पर? यहाँ पर इस O नेगेटिव चार्ज होगा, उसके बाद वो न्यूट्रलाइज होने के लिए Cl रिलीज करेगा, ठीक है, उसके बाद ऐसा प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद फिर से जो Cl माइनस जो रिलीज हुआ वो सल्फर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए सल्फर को अटैक करेगा, एज Cl माइनस इज नेगेटिवली चार्ज, सो ऑब्वियसली इट मस्ट बी अटैक ऑन positively charged sulfur. Okay, and there must be this double bond that should be rearranges, and O negative is there, and that should be again produce double bond O, and this group will be release. This group will be release. Okay, so finally what that should be generated? This product CO2 and Cl minus that are produced. Okay, so next one, this lone pair attack on sulfur and chlorine, that should be released, and again chlorine attack on this, and this oxygen make a bond between sulfur oxygen. So ultimately what should be done? There must be the product can be produced this, and also along with DMSO that should be again produced. तो इसमें और कुछ भी नहीं, जो होता है फर्स्ट वन DMSO रिएक्ट करता है ऑक्सीटाइल क्लोराइड से, उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर COCl निकल जाता है, उसके बाद सल्फर प्लस एंड Cl का एक कंपाउंड होता है, CO2 रिलीज होता है, CO रिलीज होता है, Cl माइनस रिलीज होता है, उसके बाद आपका कंपाउंड ले लो, वहाँ पर एक OH है, उसका OH में लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंस है, वो S पॉजिटिव को अटैक करता है, उसके बाद Cl माइनस तो मीडियम में है, वो Cl माइनस अटैक करेगा, उसके बाद जो DMSO वो निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी आंसर है। ओके, ऑप्शन बी नहीं, रुको, ऑप्शन डी है ना, रुको देखते हैं, हाँ ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। ओके, नेक्स्ट वन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? ओके, तो ये देख लो, इसका भी हमने मैकेनिज्म दे दिया,
आपका जो फर्स्ट CH3COAT3 इसका स्ट्रक्चर ये होता है। कौन सा वाला? ए वाला होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा OAT का लोन पेयर जाएगा, OAT प्लस इथानॉल जैसे निकल जाएगा। ओके, देयर मस्ट बी ऑक्सीजन लोन पेयर डिलोकलाइज एंड इथानॉल दैट शुड बी रिलीज। एंड इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? इथानॉल एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल दैट शुड बी रिलीज। हियर इथानॉल द न्यूट्रल मॉलिक्यूल दैट शुड बी रिलीज, दैट इज द driving force. So ultimately what should be produced? This. And there must be, this oxygen is actually positively charged, right? So the compound can be easily attack on it, right? And ultimately there must be this produced, right? You can say in any way, in that pathway or in that pathway, both pathway the reaction can be produced. So what should be done? This oxygen, this bond is there, delocalized, and this bond delocalized, this bond produced, and ultimately this product is formed. Okay. Okay. So the what is the option? Option C is the correct answer. Okay. Thank you. Next one. Next question is that options are also that you can screenshot. Okay. Next, there must be CH3NH CH2COOH react and ET3N and DMF dimethyl formamide react and hit. Okay, so what is the mechanism? That mechanism. Okay, very simple mechanism. There must be this lone pair attack on it, and there must be O negative is there. There must be adapt can be produced, that is C double bond N because of water release. जब भी कोई एमीन या एमीन टाइप कुछ आपका कार्बोनिल के साथ अटैच होता है तब क्या होता है? वाटर रिलीज होता है और कार्बन डबल बॉन्ड N प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ज़्यादातर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पर आप बेस दोगे। बेस क्या करेगा? यहाँ का जो CH2 है उसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बेस एब्स्ट्रैक्ट दैट प्रोटोन ऑफ CH2. Why? Because of -I and -R effect of COOH and -I effect of N+. ओके, वैसे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन के पास वाला जो भी हाइड्रोजन होता है वो हाईली एसिडिक होता है, पर यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन प्लस है। और नाइट्रोजन प्लस कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके ऊपर अगर आपका पॉजिटिव चार्ज हो और उसके पास अगर कोई भी हाइड्रोजन हो तो वो जाहिर सी बात है वो आपका एसिडिक होगा, ठीक है। और नेक्स्ट एक बात, जो एसिड होता है COOH वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर कैरेक्टर शो करता है। वाई? बिकॉज -R इफेक्ट, बिकॉज -R इफेक्ट। तो दैट्स वाई बोथ ऑफ दैट group ultimately the middle CH2 gets acidic. These hydrogens are acidic. 2 हाइड्रोजन CH2 का 2 हाइड्रोजन होता है, वो दोनों ही एसिडिक होता है। पर ET3 एक लिया है तो वो एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली वहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, डाई एनाइन कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। वहाँ पर कार्बोनाइन मतलब एक ही एनाइन प्रोड्यूस होता है, कोई एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा कोई एक कार्बन से, ठीक है। तो वो ठीक है, वो O नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस डबल बॉन्ड रिएक्ट ऑन दैट कार्बन बिकॉज ऑलरेडी द नाइट्रोजन पॉजिटिव, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन जब बॉन्ड होता है तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, तो नाइट्रोजन तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड खुद के ऊपर ले लेता है, पर नाइट्रोजन पॉजिटिव है वो और भी ज़्यादा खींच लेगा। इसलिए कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव, इसमें कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए कोई भी आपका निकोफाइल हो या डबल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोरिच सिस्टम हो, वो और भी फास्ट रिएक्ट करेगा। और इसका और ड्राइविंग फोर्स ऐसा होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है कि नाइट्रोजन का जो प्लस साइन है उसको न्यूट्रलाइज करना भी एक
ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है। तो देयर मस्ट बी द कार्बन आयन कैन बी प्रोड्यूस एंड दैट शुड बी रिएक्ट एंड दैट साइड एंड दिस डबल बॉन्ड रिएक्ट ऑन कार्बन. व्हाई? बिकॉज कार्बन इज much electrophilic. Why? because C double bond N, in bond C double bond N, nitrogen already much electronegative than carbon, so already nitrogen pushes electron cloud towards itself, right? Nitrogen pushes electron cloud towards itself. But here not only nitrogen present but also N positive are present, and N positive is having electron withdrawing nature much higher than nitrogen. So that's why carbon again more electrophilic. So that's why obviously any electronic system or double bond can be easily attack on carbon atom. And there must be another driving force is there, that is the neutralization of N positive charge. Okay, that's why. So there must be again heat is there, COOH release, and ultimately that product is produced. Okay, workup why needed? Because by decarboxylation there should be a carbon ion can be developed, and this carbon ion can be abstract proton by workup process. Okay, so what is the product? This is the product. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. देख लो अच्छे से, यहाँ पर जो ऐसा प्रोडक्ट है, हाँ, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट वन 10. In the following reaction sequence, the structure of A and B respectively. Okay. There must be I2PAPH3, imidazole is there, and this is, you can see by this way that this is sure a coupling reaction. ऑर्गेनोमेटेलिक जो भी कपलिंग रिएक्शन होता है, क्या क्या कपलिंग रिएक्शन होता है? सोनोगासेरिया, स्टीलर कपलिंग, यामा कपलिंग, नेगिशी कपलिंग, हेक कपलिंग. हेक कपलिंग में सिर्फ पैलाडियम होता है. यामा कपलिंग में आपका सिलिकॉन एसआई होता है, और स्टीलर कपलिंग में एसएन होता है. और सोनोगासेरिया में आई थिंक कॉपर होता है, कॉपर भी होता है और पैलाडियम भी होता है. कॉपर ऐसे को कैटलिस्ट होता है, ठीक है. और हेक कपलिंग में सिर्फ पैलाडियम यूज़ होता है, ठीक है. और एक होता है कुमाडा कपलिंग होता है. तो बहुत सारा कपलिंग रिएक्शन होता है. सुजुकी कपलिंग में बोरोन या बोरोनिक एसिड ऐसा कुछ होता है, ठीक है. तो ऐसे आप देखोगे, ये ऑप्शन है. ये देख लो, ये है आंसर. मतलब क्या है? फर्स्ट I2PPHC क्या करेगा? वो टर्मिनल में जो OH है उसको I में कन्वर्ट करेगा. वाई? बिकॉज I2PPHC दैट शुड बी एक्ट एज सिलेक्टिव कन्वर्शन ऑफ आयोडाइड फ्रॉम एल्कोहल. जहाँ पर एल्कोहल होगा वहाँ से आयोडाइड I रिप्लेस करेगा, ठीक है. और कहीं पर कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका जो OH है वहाँ पर I आ जाएगा, ठीक है. और क्या होगा? और इसके बाद देखो, जो इसको यहाँ पर जिंक है, ठीक है. ये जार्कोनियम नहीं, जिंक है, और कॉपर आयोडाइड है. तो क्या बोला? जहाँ पर जिंक होगा उसको हम बोलते हैं नेगिशी कपलिंग, ठीक है. और वहाँ पर एक हैलोजन या कोई भी लिविंग ग्रुप होना चाहिए, एक Br या कोई भी हैलोजन ग्रुप होना चाहिए. उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट एक बॉन्ड प्रोड्यूस होगा. क्या बॉन्ड होगा? ऐसा बॉन्ड होगा, ठीक है. तो ये है नेगिशी कपलिंग, ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग रिएक्शन. वहाँ पर क्या होता है? एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, एक हैलोजन ग्रुप होना चाहिए. ये दोनों ग्रुप चला जाएगा, PDX2 ऐसे होकर चला जाएगा. उसके बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रोड्यूस होगा बाय कैटालिटिक साइकिल. तो इसको हम नेगिशी कपलिंग भी बोल सकते हैं. तो ऐसा कौन सा रिएक्शन में है? रिएक्शन देखो, आपका ऑप्शन ए में ए है फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, और ए है सेकंड प्रोडक्ट, ठीक है. तो आपका कहाँ पर मैच करता है ये देख लो. ए है ए, ये है बी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर.
ठीक है। 11 इसको तो हम देख कर ही बोल सकते हैं कि यहाँ पर CH2Cl2 एंड मिथाइल लिथियम होकर AC प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बहुत फेमस है CH2Cl2 और मिथाइल लिथियम यहाँ पर बेस जैसा काम करता है। CH2Cl2 से कार्बिन प्रोड्यूस करता है, जो कार्बिन को बोला जाता है CHCl। वो CHCl रिएक्ट करके आपका जो इंडोल का रिंग है उसको रिंग का एक्सपेंशन करेगा और क्विनोलिन डेरिवेटिव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है। और आप मैकेनिज्म भी देख सकते हो कि वहाँ पर फर्स्ट वन मिथाइल, जो मिथाइल लिथियम होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है। वाई? क्योंकि लिथियम ऐसा चीज़ है कि वो कोई भी अल्काइल एराइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता है पर फिर भी वो आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, सो लिथियम एंड मिथाइल लिथियम दैट इज ए completely ionic compound. Lithium always produce ionic compound with alkyl group, and there must be the methyl lithium is positively charged, so obviously methyl is negatively charged. So methyl or partially negatively bhi you can say, so that should be always same, but ultimately this is the main factor is methyl is a negative pole. ठीक है, that is del negative, and that must be abstract hydrogen to produce stable compound methane. So ultimately there must be a carbon ion is produced, that carbon ion. Okay, and there must be Cl release. Why? Because Cl is good leaving group than hydrogen. There must be two driving forces there. First one, Cl is much bigger and Cl having much higher electronegativity difference, and that's why carbon Cl bond is weak with respect to carbon hydrogen bond. So that's why Cl will be released. Okay, that is the reason. जो कार्बन क्लोरीन होता है और कार्बन हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्यों नहीं निकला और क्लोरीन निकल गया? इसका कारण यही होता है कि क्लोरीन का साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है कार्बन से, और क्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो 2p 3p बॉन्ड होता है। और एक बात, कार्बन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इतना सारा मिसमैच के लिए कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना इफेक्टिव कार्बन हाइड्रोजन का होता है, इसलिए क्लोरीन निकल जाता है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बहुत कम होता है, कार्बन का 2.5, हाइड्रोजन का 2.1, ऑलमोस्ट यू कैन से मोस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर and never be dissociate easily. And that's why there must be, when one chlorine that should be released, there must be carbon is produced. Okay, carbon is produced. Now this carbon react on indole, and there must be ring construction, ring expansion is there, nitrogen lone pair delocalized, and this bond can be go that way, and that is the product, that is quinoline derivative can be produced. So C option is the correct answer. Okay, next one. There must be, you can see this sodium 2OH AC whole 4 double bond N2. So here you always remember double bond N2 always be released, and that should be produce carbon, mostly produce carbon. Okay, this carbon, and carbon is already electrodeficient, so that's why oxygen having lone pair and electrolyte system, that should be react on carbon, and ring can be produced and oxygen giving the lone pair, so oxygen चेंज टू ऑक्सीजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन लोन पेयर देता है इसलिए ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों है? क्योंकि कार्बन को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन दे दिया, तो कार्बन क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। तो नाउ दिस नेगेटिव चार्ज रिएक्ट इन दैट वे, and there must be this product is produced, and now there must be asked that is which type of reaction in that step is there, so there must be, you have to choose which bond have to be break, जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसका दोनों साइड में कितना कितना एटम है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 3, तो अल्टीमेटली द आंसर इज 2 3 सिग्माटोपिक रिएक्शन। तो जो भी आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया उसके दोनों साइड में कितना एटम होता है वो आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आप काउंट करोगे, उसके बाद काउंट करके आप देखना कि यहाँ पर एक साइड में 1 2 है, दूसरा साइड में 1 2 3 है, ऑब्वियसली दिस इज a 2 3 sigmatropic reaction. Okay, next one. Correct sequence steps involved in the following transformation.
That is first one, Michael addition, aldol condensation, syn elimination, ketoenol tetramerization. Next one, aldol condensation, electrocycle ring closing, syn elimination, dehydrogenation. Third one, Michael addition, Claisen condensation, anti-elimination, ketoenol tetramerization. Fourth one, Robinson annihilation, dehydrogenation, anti-elimination. So this is the mechanism. So first one, what? Base abstract proton. Okay, this proton react not on carbonyl, react on alkene first. रिमेंबर दैट, जब भी कोई अनसेचुरेटेड सिस्टम आप देखोगे, वहाँ पर अगर कोई भी नेगेटिवली चार्ज वो डबल बॉन्ड को अटैक करता है, कार्बोनिल को अटैक नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं माइकल एडिशन. ओके, सो एज SOPH, and always remember carbon ion when having the too much conjugation in anyhow gain, so there must be mostly they having the soft character and they can attack on the soft center. And always remember carbon is hard and that side is soft. So soft interaction, hard interaction, I already tell you. So that's why this carbon ion attack on the soft center, that means the double bonded carbon. Okay, and there must be this product is produced. Okay, so there must be this double bond abstract H plus from any medium. Okay, there must be this produced. Then again base is there, base abstract that proton. Okay, there must be this H2 abstracted first. Why? Because पास में क्या है, कार्बोनिल है, कार्बोनिल already having minus I effect, so that's why this proton, the nearby proton, that should be abstracted first, and this carbon attack here and that should be attack here. Ultimately this ring can be formed, and there must be the water element like H release and OH release. So ultimately this produced, and then again you have to release SOPH, and again H release and SOPH release. So you can say PH SOH, that should be released. So ultimately this product produced. Again there must be another conjugation needed, H release and O, the double bond O change into OH. Okay, so that is, there must be, remember that the first reaction that should be going on, that is Michael addition. Next one here, carbon and attack on carbonyl, that is a aldol reaction. Okay, and the last way, there must be syn elimination, because this hydrogen and this all-over group release from the syn same position. And last one, there must be ketoenol tautomerism, keto form converting to enol form. Okay, so now you can see in the option. So first one, Michael addition. Second one, aldol condensation. Third one, syn elimination. And last one, ketoenol tautomerism. So Michael addition, aldol condensation, syn elimination, ketoenol tautomerism. Okay. Next one. Major product form in the following reaction. Okay. So what should be the answer? Epoxide ring open at the less sterically hindered, always remember. So when the less sterically hindered, in that side reaction can be goes, so ultimately this product is produced. Okay, clear? Next. Major product A and B of the following reaction. This is the question. I2NaH CO3, that means what? I2 first आयोडोनियम आयन से एक रिंग प्रोड्यूस करेगा I पॉजिटिव, उसके बाद NaHCO3 ऐसे बेस वो रिएक्ट करेगा. ओके, उसके बाद DBU रिएक्ट करेगा. DBU ही एक बेस होता है, एक बल्कि बेस. तो ऑप्शन भी देख लो. This is the mechanism. First one, acid, this is the compound. I2 produce iodinium positive ion, and then
then there must be color hydrogen abstracted by NaHCO3 from acid group, because already you know in any compound if so many hydrogens are there, always remember the most acidic hydrogen is from acid. एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर दिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, याद रखना। वो जो ऑक्सीजन का ओ नेगेटिव है वो जो I+ है बाहर में अटैक करेगा और I अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होगा, देखो, तो अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर आयोडीन रहेगा, एक बार हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर एक रिंग होगा। और ये जो है ए बिलो साइड है, राइट, ये रिंग बिलो साइड है, मतलब जो ओ नेगेटिव अटैक किया वो एबोव साइड से अटैक किया, राइट। तो इसलिए ए भी एबोव है, ए भी एबोव द प्लेन है, क्योंकि आयोडीन का जो आयोडीनियम I+ रिंग किया, जो 3 मेंबर रिंग प्रोड्यूस हुआ, वो बिलो द प्लेन है। तो जब भी कार्बोनिल का जो एसिड का ओ नेगेटिव अटैक करेगा वो अबव द साइड अटैक करेगा, ओके। व्हेन द acid group O negative attack, that should be attack from the above side. So ultimately by workup that should be produced, okay. Now you can match the option. Okay, option A, that is maybe A option, maybe B option, okay. Next one, DBO, that should be attack, that should be abstract from the less sterically hindered hydrogen. There must be so many hydrogen, but this hydrogen is near of DBO and this hydrogen is outsider, and that should be less sterically hindered. And this iodine that should be released as a good living group, so that should be produced. So what is the answer? Okay, option B is the correct answer. Next one, the major product, okay. This is the reaction, okay. So Br2, first one, homolytic cleavage can be there. The radical produced, and that should be combined with Br, okay. So this is produced, that should be combined with Br, okay. Next one, this product is produced. So you can see, so option D is the correct answer, okay. Option D is the correct answer. The reaction is there, okay. Options are there, okay. Now in the mechanism I already done. Mechanism is aqueous NaOH abstract the proton, carbon ion can be produced, and this carbon ion can be delocalized, enolate is produced, and this enolate again delocalized, and that should be react on that side, okay. So that side that should be reacted, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, ठीक है, और वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है। उसके बाद ओ नेगेटिव हो जाता है, वर्कअप करो तो OH हो जाता है। उसके बाद और भी रिएक्शन होता है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज होता है, वो यहाँ पर अटैक करता है, Cl लिविंग ग्रुप बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन दैट शुड बी रिलीज, O negative carbonyl that should be attack, and Cl that should be release. And then NaOH aqueous, there must be this hydrogen can be abstracted by in OH minus, and OH that should be released, and ultimately this product is produced, okay. Option A is the correct answer, okay. Next reaction, this is a very easy. First one, benzene intermediate can be produced, okay. NaNH2 used mainly by
Na जो ज़्यादा यूज़ होता है वो बेंजाइन प्रोड्यूस करने के लिए बहुत यूज़ होता है। Na मोस्टली यूज फॉर बेंजाइन इंटरमीडिएट और समटाइम्स चिचिबाबिन रिएक्शन कैन ऑल्सो बी डन, ओके, बट हेयर चिचिबाबिन रिएक्शन नेवर बी डन बिकॉज हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज नॉट देयर, ओके। यहाँ पर कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग नहीं है जो चिचिबाबिन रिएक्शन होगा। तो Na याद रखना, Na प्लस होता है और Na माइनस होता है, राइट। तो Na माइनस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड देगा, फ्लोरीन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर बेंजा इंटरमीडिएट होता है, बेंजा इंटरमीडिएट स्टिल एरोमेटिक होता है, याद रखना, क्योंकि उसका जो प्लेन में जो सेक्सटेट होता है वो सेक्सटेट डिस्टर्ब नहीं होता है। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है, एरोमेटिसिटी लॉस्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन जैसा होना है वैसा ही होता है। पर यस, रिएक्टिविटी हाई हो जाता है क्योंकि एक रिंग में सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक दो जगह में sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। और फ्यूरा ऑलरेडी ऑलरेडी रिएक्टिव होता है, वाई, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन सल्फर बाकी सब हेटेरो एटम से, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खुद के पास ले लेता है। जो भी हो आपका ऑक्सीजन का लोन पेयर्स एरोमेटिक सेक्सटन में इंगेज तो होता है, पर उसके बाद भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत खुद के पास ले लेता है बाय माइनस आई इफेक्ट, तो इसलिए फ्यूरान ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो डीएसएलआर रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है। और याद रखना, डीएसएलआर रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, आपका एरोमेटिसिटी कोई भी कंपाउंड का जितना ज़्यादा होगा उसका डीएसएलआर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना एज ए डाइनोपाइल बोथ कैरेक्टर इज डिफिकल्ट, ओके। एरोमेटिसिटी ज़्यादा हो तो डीएसएलआर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना ही डिफिकल्ट होता है, वो डाइन ही बोलो या डाइनोफाइल ही बोलो, ओके। तो फ्यूरान या ऑलरेडी यू नो एरोमेटिसिटी का अगर ऑर्डर देख लो तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी कौन सा होता है, बेंजीन होता है। उसके बाद आप बोल सकते हो पिरीडीन होता है आई थिंक, उसके बाद थायोपिन के बाद पायरोल के बाद होता है लास्ट में होता है फ्यूरान। तो फ्यूरान का एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे लो होता है, तो वो डीएसएलआर रिएक्शन में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये प्रोडक्ट होगा, अगर आपका H2PD हो जाए तो वो रिंग ऐसे खोल जाएगा और उसके बाद H+ हो तो नैप्थलीन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट वन, द कंपाउंड दैट इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय केमिनोफोर। ऑलवेज रिमेंबर केमिनोफोर जो ऑक्सीडाइज करता है वो बेंजालिक पोजीशन में ऑक्सीडाइज होता है। बेंजालिक पोजीशन पे आपका जो भी हो वहाँ पर अगर एक अल्फा हाइड्रोजन हो, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आप देखो कि बेंजालिक पोजीशन ए वाला होता है, ठीक है, ए वाला होता है। तो यहाँ पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, आपका जो रिंग है, रिंग के पास वाला जो हाइड्रोजन है वो ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो रिंग के पास वाला हाइड्रोजन तो ए होता है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो ए ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। तो द कंपाउंड दैट इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय केमिनोफोर ऑप्शन डी, बिकॉज on option D, 3 methyl groups are there, no alpha hydrogens are there which can be oxidizable. Last compound, the major product, sodium liquid ammonia and then H2+. Always remember sodium liquid ammonia is the example of Birch reduction, and there always remember the transalkene as a major product. Why? Because for free radical mechanism there must be two radical can be developed and these two radical never be oriented in a cis way. आपका जो डबल बॉन्ड होगा ना वो ऐसा होगा, यहाँ पर एक लोन पेयर होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसलिए वो रोटेट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ट्रांस होता है, ट्रांस अल्किन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांस कौन सा है, ये है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, ये नहीं होगा। ए तो सीस है, ए भी नहीं होगा। ए टर्मिनल नहीं होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सी सर्किन होगा। तो ये जो लास्ट ट्रांस सर्किन होगा, तो ये ट्रांस सर्किन है। तो थैंक यू।
लोन पे रिपल्शन के लिए आपका ट्रांस एल्किन मेजर प्रोडक्ट इन बैच रिडक्शन। और सिस एल्किन कहाँ पर होता है, डाइबल एज होते में सिस एल्किन होता है, लीनियर कैटलिस्ट में सिस एल्किन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं रिएक्शन। Thank you, and please subscribe, like, comment, share. Okay.